Good morning, students. Today we are going to study about Introduction to Information Technology. This is the first topic of our first unit of our Information Technology book of class 9th. Before this video, we already studied about basics of computer, parts of computer, input and output devices of computer. Now we are going to study about IT. Information and communication technology has become one of the basic requirements of the modern society. Information or communication technology, that means ICT, अपनी मॉडर्न सोसाइटी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है. In today's digital era, we use mobile devices to perform the task of our daily life. अगर हम हमारे इस डिजिटल युग की बात करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल डिवाइस का यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ के वर्क को या टास्क को कंप्लीट करने के लिए. इट इज़ difficult to think of any event without the use of digital device. ये डिजिटल डिवाइस का यूज़ किए बिना किसी भी वर्क को कंप्लीट करना या सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which envisages easier flow of information at various levels in the desired pattern. Information technology पूरे वर्ल्ड का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कि ये इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा रहने वाला है अलग अलग लेवल पर. The information technology enabled service sector has not only changed the way the world look at our country but has also made significant contributions to the Indian economy. Information technology enabled service, that means IT's sector has not only changed the way the world look at our country. उसने केवल पूरी दुनिया जो हमारी एक देश की तरफ देख रही केवल उसी का लुक चेंज नहीं किया है बट हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी. इसके अलावा भी उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन इकोनॉमी में. दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ideas related to information technology and information technology enabled services. Question number 1. What do you understand by the term IT and ITs? IT, that means information technology, means creating, managing, storing and exchanging information using all types of technology to deal with information. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, उसको स्टोर करना और उसे एक्सचेंज करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, क्या करके जितनी भी टाइप की टेक्नोलॉजीज़ है उन सभी का उपयोग करके. ओके, दैट मीन्स creating, managing, storing and exchanging information using all types of technology to deal with information. And IT is information technology that enables the business by improving the quality of service is information technology enabled service. कुछ ऐसे बिजनेस को इनेबल्स करना और उनकी क्वालिटी को या सर्विसेज को इम्प्रूव करना, ये वर्क होता है ITs का, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IT एंड ITs. IT, that means create, manage, store and exchange information.
and IT is that means improve the information or improve the quality or services of the business. Question number 2. What are the pros and cons of using ICT? Pros and cons, that means we can say in our normal language, advantages and disadvantages of ICT or merits or demerits of using ICT, information and communication technology. So first, pros of using ICTs are easy and quick communication. ICT का उपयोग करके हम बहुत इजी वे में और बहुत ही फास्ट वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एनीवेयर एनी टाइम इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कहीं भी किसी भी समय में किसी भी इंफॉर्मेशन को इजी वे में एक्सेस करना. इम्प्रूव्ड हाउसिंग एंड लाइफ स्टाइल्स, हम हमारे घर में रहने का तरीका और हमारी ज़िंदगी जीने का तरीके को इम्प्रूव करना. इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एवरी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सभी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना. कन्वीनियंस इन ट्रेवलिंग एंड एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में, दैट मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में और ट्रेवलिंग के क्षेत्र में, दोनों में कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, दैट मीन्स इजी वे प्रोवाइड करना. इनकरेजेस इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, नयापन लाना और नए नए बदलाव करने के लिए इनकरेज करना. क्रिएशंस ऑफ न्यू जॉब्स, दैट मीन्स न्यू जॉब्स प्रोवाइड करना नए मेंबर्स को. Cons of using technologies are, that means demerits of the using ICTs. First, privacy. Your information on phone or email can be hacked. जब भी हम ICT का यूज़ करते हैं तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी मेज़र होता है कि हम हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसे सिक्योर रख सकते हैं या कैसे सेफ रख सकते हैं. और ICT का यूज़ से सबसे ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन या ईमेल के थ्रू हैक की जाती है. सेकेंड, साइबर क्राइम. क्राइम्स लाइक साइबर बुलिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग एट्सेट्रा, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हैकिंग होती है, उसी टाइप से साइबर बुलिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग. हमने बहुत सी टाइम ये भी सुना जाता है कि हमारी आईडी किसी के द्वारा हैक की गई या फिर हमारा डेटा किसी के द्वारा चुरा लिया गया, या फिर कुछ व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं, बैंक अकाउंट को हैक करके उसमें से सारा अमाउंट डेबिट कर लेते हैं. इस टाइप की सारी एक्टिविटीज साइबर क्राइम के अंदर आती है. रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. एनी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज़ नॉट रिलायबल, दैट मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इंटरनेट पर होती है, जब भी हम उसको एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, वो रिलायबल नहीं होती है. दैट मीन्स वो वाली इंफॉर्मेशन विश्वास के लायक नहीं होती है, वो फेक भी हो सकती है. कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, मालवेयर्स, स्पैम कैन कॉज chaos एंड डिसरप्ट आवर डेली लाइव्स. हमने अलग अलग कंप्यूटर वायरसेस के नेम सुने होंगे आपने 8th क्लास में, लाइक वॉर्म्स, ट्रोजन्स, मेलवेयर, स्पैम. ये हमारे जो डेटा है उसको कर्स कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है और हमारी डेली लाइफ्स को डिसरप्ट कर सकता है. ये कुछ डिसएडवांटेजेस है ICTs के. क्वेश्चन नंबर 3. What precautions are required to ensure that ICT use is safe? ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड है जो कि इंश्योर कर सके कि ICT, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग सेफ है. सो पॉइंट नंबर 1, इंस्टॉल प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स इंस्टॉल प्रोटेक्ट एंटीवायरस विच कैन हेल्प to reduce any damage to the data present in computer and keep it update.
हमेशा कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है उसको डैमेज होने से बचा सके, और उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। चूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा हमारा जो ईमेल आईडी होती है या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो हम पासवर्ड यूज़ करते हैं उस पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कभी भी हमें नॉर्मली पासवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा निक नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, मोबाइल नंबर हुआ, गाड़ी का नंबर हुआ, 2 व्हीलर्स का या 4 व्हीलर्स का, पेट नेम हुआ, ठीक है। इस टाइप के नॉर्मल जो पासवर्ड हम यूज़ करते हैं वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा इजी वे में गेस कर लिए जाते हैं। बैकअप ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमेशा जब भी हमारे पास में ऐसा कोई डेटा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है, उसका रेगुलर बेसिस पे हार्ड डिस्क के अंदर बैकअप लेते रहना चाहिए, जिससे कि कभी हमारा डेटा अगर लॉस हो भी जाता है तो हम उसको जो हमारा सेव्ड फाइल है वहाँ से उसको रिकवर कर सकें। कंट्रोल एक्सेस टू योर मशीन। ऑलवेज लॉग आउट फ्रॉम योर आईडी एंड डू नॉट लीव योर मशीन अनअटेंडेड विद योर आईडी लॉग्ड इन। हमेशा अपने गूगल आईडी को कंप्यूटर से लॉग आउट करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारी आईडी लॉग्ड इन है और हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में छोड़कर चले गए। अगर कोई दूसरा यूज़र वहाँ पर आता है तो उसी आईडी का यूज़ किसी गलत काम के लिए कर सकता है। यूज़ ईमेल एंड द इंटरनेट सेफली। इग्नोर unwanted emails because caches of attachments, links and forms in emails that come from people you don't know. हमेशा unwanted emails मतलब कि बहुत सारे emails ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। कुछ कंपनीज या हम बोल सकते हैं कि जो लोग हैकिंग करने का काम करते हैं या फिर कुछ लोग जो कि इंटरनेट के थ्रू डेटा स्टील करने का काम करते, चुराने का काम करते, वो हमेशा कुछ मेल्स ऐसे आपको सेंड करते हैं जिसकी लिंक पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए हमेशा अनवांटेड ईमेल्स को इग्नोर करना चाहिए। इसके अलावा जब भी कोई अटैचमेंट है, लिंक है या ईमेल का फॉर्म से, उसको क्लिक करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पीपल या कौन से लोगों ने उस ईमेल को भेजा है या फिर उसके अंदर कौन सा वायरस ऑलरेडी है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। प्रोटेक्ट सेंसिटिव फाइल्स यूजिंग द एन्क्रिप्शन टूल्स बिल्ट इनटू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऐसी फाइल्स जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उस फाइल को हमेशा एन्क्रिप्शन टूल्स के थ्रू एनक्रिप्ट करके रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और ये एन्क्रिप्शन टूल्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। एज ए एग्जाम्पल, जब भी हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो वो एनक्रिप्ट रहता है। डेट मीन्स सबसे पहले या तो हमें उसमें हमारा पिन डालना होता है या फिर फेस प्रोटेक्शन सिस्टम होता है या फिर फिंगर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। मेक ऑनलाइन परचेसेस फ्रॉम सिक्योर साइट्स। हमेशा ऑनलाइन परचेसिंग सिक्योर साइट से ही करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम परचेसिंग करते हैं उसमें हमारी मैक्सिमम डिटेल पुटअप होती है। एज एग्जांपल हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। बी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट। जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी एप्लीकेशन पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, जब केयरफुल होना चाहिए, कुछ भी उसके ऊपर पुट नहीं करना चाहिए कि हम किसी और को हर्ट करें। बी केयरफुल हु यू मीट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन किससे मीटिंग कर रहे हैं उस समय भी आपको केयरफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गूगल मीट ऐप पर मीटिंग में ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन वो अपना वीडियो को ऑफ करके रखते हैं। अगर वो उसकी आईडी से कनेक्टेड है तो अगर उनकी आईडी पे उनका रियल नेम है तो केवल हम उसको नेम से पहचानेंगे, हमें ये नहीं पता कि वह कौन सा स्टूडेंट है या फिर उस आईडी के पीछे
कौन है, इसलिए हमेशा केयरफुल होना चाहिए जब भी हम किसी ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड बी केयरफुल वॉट यू डाउनलोड। जब भी हम इंटरनेट के थ्रू कुछ डाउनलोड करते हैं उस समय भी हमें केयरफुल होना चाहिए। रीज़न इज़ बिहाइंड दिस, जब भी हम किसी वेबसाइट के थ्रू कोई डेटा को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे वायरसेस भी डाउनलोड हो जाते हैं हमारे सिस्टम में, और डाउनलोड होने के बाद में, इंस्टॉल होने के बाद में हमारे डेटा को हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। सो like and subscribe the YouTube channel if you understand all the topics that we read today. Write all the 3 questions in your copy and learn it carefully.